الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأسفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. One of the name of Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla majduhu in the Quran and in the Hadith Sharif is mentioned Al-Hakim. Al-Hakim means all wise, as normally it is translated. But when deeply one ponders over it, it has infinite meanings and blessings in it. And if a person, a servant, tries to understand it, many difficulties become easier, and many of the problems and the questions which people have in their mind, which rise due to different happenings and different events in the world, begins to become clearer and clearer. And one of it is especially related to the closeness and the friendship and the presence of Allah Azza wa Jal Himself. That when Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal has mentioned very clearly in the Quran and also in previous revelations that the humankind has been created to serve and worship Allah Azza wa Jal. जब अल्लाह पाक ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, then why is the other creation
other human beings live and exist with him. तो अगर इंसान को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया तो ये इबादत तो उस तरह भी कर सकता था कि अकेला पैदा होता किसी सियारे पर, किसी सितारे पर, किसी जगह जहाँ भी अल्लाह चाहता इसको। क्योंकि जब ये कहा गया, when this is said that he or she or the creation of humankind and jinnat is for the worship of Allah, is created to worship Allah, then why to place them together on one small planet called Earth, whilst there are vast kingdoms and worlds and planets which exist and no human being is living on them. जिस अल्लाह ने ये सारी मखलूक पैदा फरमाई, कहकशां हज़ारों लाखों सितारे सियारे हैं, तो उनमें ज़्यादातर पर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान नहीं रह रहा। तो अगर हर एक चाहता तो इतने सितारे, इतने सियारे, इतने आसमान के नीचे मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की कि एक एक पर भी अगर एक इंसान भेजा जाता तो फिर भी वो बहुत ज़्यादा है। So now the person have to think, अब बंदे को ये सोचना पड़ेगा कि दूसरे इंसानों को भी इसके साथ ही क्यों पैदा किया जाता है, उनको भी इसी ज़मीन पर क्यों रखा जाता है। Why the human beings, other human beings are also placed on the same earth and they are made to live together. And then amongst these human beings, some become parents, then they become brothers or sisters, husband and wives, and some become the righteous mu'mineen, some become the awliya Allah, and then there are Anbiya alayhimus salam amongst the human being, then the Rusul, and then Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Allah Azza wa Jal is obviously the creator of all. So any person who understands this, the hikmat of Allah, one of the wisdoms of Allah, that why you have been placed on this face of the earth together, for that person it becomes easier to reach Allah Azza wa Jal. जिसको ये समझ आ जाए थोड़ी बात कि इंसानों को इकट्ठा क्यों पैदा किया गया, इंसान इस ज़मीन पर ही क्यों पैदा किए गए, सबको इकट्ठा अल्लाह पाक क्यों रखा हुआ है और पैदा क्यों फरमाते हैं और इकट्ठा हशर भी फरमाएंगे, तो उस बंदे के लिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना आसान हो जाता है। For that person, closeness of Allah becomes easier. And who don't understand this, जिसने कभी ये गौर ही नहीं किया, हालांकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब
Verily, in the creation of the heavens and earth and the alteration of night and day, definitely there are signs for the people of understanding कि बेशक ज़मीन और आसमानों की तख्लीक में ये दिन और रात का जो ये सिलसिला चल रहा है, इसमें निशानियां हैं समझ वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि निशानियां हैं। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ये मेरे बंदे ये तफक्कुर करते हैं, सोचते हैं। These my servants, they think, they ponder and they reflect in the creation of heavens and earth. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, and they also then say Ma khalaqta hadha batila, that this have not been created in vain, in falsehood, meaning that there is wisdom, there is knowledge behind it. Then Allah Azza wa Jalla said, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَثَّ فِيهِمَا, that there is signs, amongst Allah's signs is the creation of heavens and earth, and that He placed living beings in them. And obviously the living beings are human beings and other beings which do live. लेकिन बात यह है कि अल्लाह पाक ने तो ये फरमा दिया और इस तरह पैदा भी कर दिया, क्या मैंने और आपने कभी गौर किया इस पर कि ऐसा क्यों है? और अल्लाह पाक कौन सी निशानी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं? टू विच साइन अल्लाह इज इंडिकेटिंग, व्हाट इज द साइन इन देयर, व्हाट इज द हिदायत इन देयर, व्हाट इज द विजडम ऑफ देयर? क्योंकि हमने तो अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, जानवरों की तरह उठना है, सुबह उठे, गेट अप इन द मॉर्निंग। जानवर जो है वो तफक्कुर नहीं करते, इबादत करते हैं, दे डू वर्शिप बट दे डोंट पॉन्डर, they don't reflect as the human beings does or can. जानवर, परिंदे, चरिंदे वो इबादत तो करते हैं, तस्बीह करते हैं, लेकिन आपने गौर किया कि पूरे कुरान मजीद में, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that everything glorifies Allah. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, glorifies Allah, everything glorifies Allah which is in the heavens and earth. And all living beings, they worship Allah. But Allah subhanahu wa ta'ala only mentioned about tafakkur, pondering, reflecting and deep thinking only about human beings. फिक्र करना, तदब्बर करना, ये अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए बयान किया है, इंसानों के मुतल्लिक़ बयान किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन अबाउट द ह्यूमन बीइंग दैट दे शुड पॉन्डर, दे शुड रिफ्लेक्ट, दे शुड बी इन डीप थिंकिंग। दिस इज नॉट द गुड लाइफ ऑफ अ बिलीवर human being, getting up, working, eating, drinking,
marrying, talking, socializing, and sleeping, and then the circle continues. This is animalistic tendency which is present in animals as well. तो इंसान को सोचना चाहिए, ह्यूमन बीइंग शुड थिंक. तो आज जो है आपको जो बयान कर रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ी बच्चों ज़्यादा बातें नहीं, कि एक बात कि क्या आपने सोचा कभी कि आपको ये जो साथ आपके लोग बैठे हुए हैं इनके साथ क्यों पैदा किया गया है? Why have you been created with these people who are sitting next to you, who are living with you in your neighborhood, who are your brothers and sisters, wives and husbands, parents, communities, कि इनके साथ क्यों पैदा किया है? अगर अल्लाह, आपको तो अल्लाह के लिए पैदा किया गया है. You have been created for Allah. And that could have been happened that you were placed in a planet somewhere alone and you worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. Because you have been created to worship, and worship you could do alone as well somewhere. Then why with people? Why living with people? Why being created in people? Why made to live in people? Whoever understands this, his world view changes. जो इसको समझ जाए उसका नुक्ता नज़र, दुनिया को देखने का जाविया वो बदल जाता है. जो इसको ना समझे वो बहुत सारी मुश्किलात में रहता है. Then that person stays in lot of confusions. अल्लाह ने जानवर भी पैदा फरमाए. अल्लाह पाक ने दरख्त भी पैदा फरमाए, इंसान दूसरे पैदा फरमाए, मलाइका पैदा फरमाए. क्या जो मलाइका काम कर रहे हैं अल्लाह मलाइका के बगैर नहीं कर सकते? Whatever the angels are doing, cannot Allah subhanahu wa ta'ala do those things alone? Whatever Hazrat Jibreel alayhi salam does, whatever Hazrat Mikail alayhi salam and the millions angels under him do, like distributing, providing, facilitating rizq. Hazrat Sayyidina Mikail alayhi salam and angels under him, they facilitate rizq by the izn of Allah. Similarly, Sayyidina Israel alayhi salam has certain duties. Sayyidina Israfil alayhi salam have duties. Other angels have duties. They are angels who are protecting you. More than 300 angels, they are protecting, they are with every human being. 300 से ज़्यादा फरिश्ते हर इंसान के साथ होते हर वक्त हिफाजत के लिए. 300 से ज़्यादा. Amongst them also is किरामन कातिबीन. तो 300 से ज़्यादा मलाइका हिफाजत कर रहे होते हैं इंसान की. तो क्या अल्लाह इंसान की हिफाजत इन मलाइका के बगैर नहीं कर सकते? Cannot Allah subhanahu wa ta'ala protect the human being without these angels? Why, after all, a person have to believe in angels when he cannot even see them? It is a creation, but a person cannot become Muslim, cannot enter Islam, even though he believes in Allah, His prophets and messengers, His books.
But until he believes in angels, he does not become. These are things of the people or matters upon which wise people they ponder and reflect. And because of their reflection and deep thinking, Allah subhanahu wa ta'ala opens doors of knowledge, doors of wisdom, doors of His ma'rifah, His gnosis upon them. But to people like myself, they never actually think about it. There's so many things to think about. All they can think about is what I am going to eat, what I am going to drink, who I am going to marry, and when I am going to sleep. बस ये है. तो अब जो है उसकी हिकमत समझे. बहुत सारी हिकमतें हैं. आइम्मा, मशाइख, उलमा through the ages have mentioned them. But one of the hikmat, एक wisdom, एक हिकमत कि इंसानों को क्यों पैदा किया गया दूसरे इंसानों के साथ. I hope you have understood the question. कि भाई what the question what I have put in front of you. अल्लाह करे आपको वो सवाल समझ आ गया हो. हिकमत, एक हिकमत उसकी ये है. वन ऑफ द विजडम और द आंसर टू दैट क्वेश्चन. विच क्वेश्चन? अब ये जो लोग सोए हुए उनके लिए कह रहा हूँ कि विच क्वेश्चन? द क्वेश्चन दैट व्हाई that we are created together, we live together, we die together, we socialize together, why we are placed on this face of the earth together. दिल तो मेरा चाहता है मैं 10 दफ़ा दोहराऊँ. सुन्नत हज़ूर इस्लाम की है कि बाद आप अलैहिस्सलाम बाद जुमलों को 3 मरतबा दोहराया करते थे. तो वो महल अक्लमंद बंदे थे सहाबा इकराम रिज़वान बहुत ज़्यादा. उनके लिए 3 मरतबा भी काफ़ी है. हमें जिन लोगों से वास्ता पड़ रहा है, द पीपल हु वी आर डीलिंग विद लाइक आवर सेल्व्स, मुझे लगता है 10 दफ़ा भी कहें तो फिर भी कम है, फिर भी समझ नहीं आता. सिंपल बातें. वो दिल ही नहीं चाहता कि भाई आगे बंदा कुछ बयान करे कि भाई ये पता है कि भाई समझ ही नहीं रहा बंदा कोई, या बहुत कम समझते हैं. 10 दफ़ा दोहराया जाए फिर भी मुश्किल से जो है वो बात समझ आती है. तो वो तो सहाबा थे कि हुज़ूर इस्लाम 1 मरतबा फरमाते वो समझ जाते, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा फरमाते. So the wisdom which makes life easier, which then actually makes it easier for you to come close to Allah in response to this question which I have raised. So I am going to go towards the answer now. अब मैं जवाब की तरफ जो है जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी बताना अच्छा है, क्योंकि ये भी नहीं पता होगा बाज़ का अब जवाब शुरू हो गया. वो सवाल ही को समझने में सवाल ही शुरू है या कुछ भी नहीं. तो अच्छा होता है बताना कि भाई आप जवाब की तरफ जा रहे हैं. वो ये है कि अल्लाह ने ये जो सारी मखलूक पैदा फरमाई हुई है, इंसान यहाँ पैदा होता है और अपने दरमियान one of the wisdom of it is that Allah Azza wa Jal had mercy on the human being for the reason that Allah has infinite sifat. अल्लाह पाक के लामहदूद सिफात है, इसलिए अल्लाह का लामहदूद हक है. That actually that the rights of Allah are also unlimited. The rights of Allah
are unlimited. Hazrat Bayezid Bustami Rahmatullah Alayhi की मजलिस में, in the time of Hazrat Bayezid, one person used to come and sit. Many people came, but he said that I have been sitting in your company for 30 years, कि मैं 30 साल हो गए आपकी मजलिस में बैठ रहा हूँ, तो मुझे वो बातें समझ नहीं आती आप जो फरमाते हैं. That I don't understand. I don't tend to understand what you say, although it is very simple thing. तो मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रवायतें आती हैं. आपने फरमाया गोया, फरमाया एक तो बात समझने के लिए हलाल रिज्क चाहिए. A person should have halal rizq to have right understanding. Secondly, the person should have got rid of arrogance and self-centeredness and thinking big of oneself and greatness of oneself, and become a humble person. Humble humility. Humbleness and humility. वो क्या होती है? अक्सर बात होती है कि तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी, humbleness, humility. What is it? क्या वो ये है कि मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ माल भी नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव नॉलेज. क्या इसका नाम हम्बलनेस है? एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, humbleness, humility, ajizi, inkisari does not mean denying the favors of Allah on you, which Allah has favored upon you. Whatever Allah has showered upon you, आजिज़ी इनकसारी या आजज़ इनकसार बनने का ये मतलब नहीं कि आप अल्लाह की नेमतों का मुनकर होना शुरू हो जाएं. अल्लाह ने माल दिया, आप कहें मेरे पास तो कुछ नहीं. अल्लाह ने इल्म दिया, आप कहें मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं. अल्लाह ने आपको और नेमतें दी, आप कहें मुझे तो कुछ नहीं दिया. तो ये तो नाशुक्री है. दिस इज़ अनथैंकफुलनेस. इसलिए हमारे लोग बाज वो अपनी तरफ से बड़ी नेकी कर रहे होते हैं कि हम आजिज़ बन रहे हैं, हम मुतवाज़े बन रहे हैं, हम हम्बल बन रहे हैं, और क्या करते हैं वो अल्लाह की नेमतों का इनकार शुरू कर देते हैं. अल्लाह ने किसी को कुछ दिया हुआ है तो वो कहेंगे हमें तो कुछ नहीं दिया, मारे गए, टूटे गए, कुछ नहीं है. तो आजिज़ी इनकसारी करते करते अपने ती वो झूठ बोलते हैं और साथ ही जो है वो नाशुक्री करते हैं. तो ये आजिज़ी इनकसारी नहीं. सो द हम्बलनेस इज नॉट दैट यू डिनाई, you negate the favors of Allah. Humbleness and humility is being honest about your weaknesses. Being honest about your weaknesses. आजिज़ी इनकसारी ये है कि ये नहीं कि अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने आपको हुस्न दिया, खूबसूरती दी, उस पर तो अल्लाह का शुक्र करें. माल दिया, दौलत दी, इल्म अता फरमाया. लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया. रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस. ए अल्लाह, आपने मुझे बादशाहत अता फरमाई. ए अल्लाह, आपने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया. अल्लाह, यू गेव मी किंगडम and you blessed me with the knowledge of the interpretation of dreams. आगे फिर वो फरमाते हैं कि मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमा, मैं अच्छा कि शुक्र करूं तेरा. फरमाया
कि मुझे जानवरों की आवाज़ें आती, बोलियां आती है, बोली की समझ आती है। लोगों को फरमाया, लोगों के सामने मैं, अल्लाह ने मुझे जानवरों की ज़बानों की समझ अता फरमाई है। और फिर आगे अल्लाह का वो शुक्र अदा करते। हते अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया। देखिए ना, ये तो इसका ये आजिज़ी इनकसारी नहीं है, धोखा और कर रहा है बंदा। बदतरीन तकब्बर है जो तवाज़ो के पर्दे के पीछे किया जाए, कि अंदर से तो बंदा वाकई अपने आप को बड़ा समझता है। पर्सन कंसिडर हिमसेल्फ हाई, बट विद द टंग ही स्पीक्स लोली अबाउट हिमसेल्फ। दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ किब्र। So, in simple terms, I am mentioning to you, the humbleness is not denying whatever Allah has favored upon you, what favors Allah has done upon you. Humbleness or humility is attributing those favors to Allah and being honest about your weaknesses and being honest about your shortcomings. तवाज़ो इनकसारी ये है कि बस अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं वो ईमानदारी के साथ अपनी कमज़ोरियों को माने, कमज़ोरियों को माने। Just confess your weaknesses in your worship, in your knowledge, in your wisdom or your action. That is humbleness. Humbleness is not that you start denying the favors of Allah which Allah has given you. The ni'mats of Allah, Allah wants you to وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah wants you to proclaim, to express His favors, to manifest His favors on you. Allah loves to see the effect of the favors, His favors upon people. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw a person whose hairs were dispersed, whose clothes were not clean. And Prophet ﷺ asked him that, hasn't Allah given you any wealth? He said, Ya Rasulullah ﷺ, in abundance, Allah has given me a lot of wealth. Prophet ﷺ said to lesser more effect in the same meaning, then Allah likes, Allah loves to see the effect of the blessing which He has given to a servant. Go and manifest them and make them apparent. अब हमें ना तकब्बर का पता, ना आजिज़ी करते करते ना शुक्री कर दी, तवाज़ो करते करते झूठ बोल दिया, तो कैसे मना करें? यही तो मशाइख से सीखते हैं ये बातें, किताबों से नहीं समझ आती इनकी। किताबों में तो लिखा कि तवाज़ो इख्तियार करो। अब कैसे तवाज़ो की ये फजीलत है कि अपने आप को कम समझना, तो वो समझते हैं अपने आप को कम समझने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लुट गए, कुछ भी नहीं, तो नाशुक्री होगी। So remember very clearly, tawadhu, humbleness, humility is not denying the favors of Allah, is the name of being honest with your weaknesses and shortcomings. If you do that, then actually, in our tariq, there is one muraqabah taught to some people. कुछ लोगों को एक मुराकबा तालीम किया जाता है. Those people who think they can't find fault with themselves, they can't find any shortcoming in their deeds. कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे अमाल तो माशाल्लाह ठीक ही हैं, अच्छे हैं, तो हमें कुछ उसमें नुक्स तो नज़र आ नहीं रहा. We can't see any shortcoming in them. तो उनको एक मुराकबा तालीम किया जाता है. For them there is a मुराकबा given in which they are asked to imagine that they are presenting their deed to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment.
their amal to Allah Azza wa Jal, and then think, is this amal, does this amal suits the majesty, the glory of Allah, or it falls short of the glory of Allah? उनको ये मुराकबा तालीम किया जाता है कि अगर आपको अपने अंदर नुक्स नहीं नज़र आ रहा, वीकनेस नहीं नज़र आ रही, कमज़ोरी नहीं नज़र आ रही, तो फिर ये मुराकबा किया करो कि गोया तुम अल्लाह के सामने क़यामत वाले दिन इन अमाल को पेश कर रहे हो, इस अमल को पेश कर रहे हो, कर सकते हो, उस वो नुक्स से पाक है, कुछ नुक्स तो नहीं नज़र आता उसमें अल्लाह को जब पेश करना है। तो जब वो फिर ये मुराकबा करते हैं, फिर उनको नुक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह को तो फिर हर चीज़ का इल्म होता है, उसके हकूक़ इतने ज़्यादा। तो बात कर रहा था कि हलाल रिज़्क भी और तकब्बर से दिल को साफ़ रखना, इससे बात समझ आती। A person can understand better, and a person who does not possess these qualities, बस उसको समझ नहीं आती। He can be an intellectual, वो प्रोफेसर तो बन सकता है, लेकिन समझ फहम उसको नहीं आई। So I come back to the answer which I was giving, that the hikmah of creating the creation with you, other fellow human beings with you, what is that? One of it, which will help you to come closer to Allah, वो ये है कि Allah has infinite rights. अल्लाह के तो लामहदूद हकूक़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हकूक़ बहुत ज़्यादा और बहुत आला, and they are actually also very weighty. इसी तरह then the rights of the sheikh or the murshid or the representative of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are also actually very high. तो अल्लाह के हकूक़ लामहदूद, फिर अल्लाह के नुमाइंदे हुज़ूर अलैहिस्सलाम होते हैं, अम्बिया, उनके हकूक़ भी बहुत ज़्यादा बंदा सोच नहीं सकता अदा करने को। और फिर उनके जो आगे नुमाइंदे होते हैं जैसे सहाबा, ताबईन और औलिया अल्लाह, मशाइख एंड द मुर्शिदीन, विच आर दे रिप्रेजेंट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे कंसिडर होते हैं, उनके हकूक़ भी बहुत आला और ज़्यादा। और साथ ही साथ फिर जैसे वालिदैन हैं मसलन, फिर उनके हकूक़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। Then there are rights of actually other people. Then there are rights of actually wives and spouses and husband and wife and brothers and sisters. Then there are rights of animals, जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। Then there are rights of your own self, आपके भी हक होते हैं। अब अल्लाह पाक ने ये आसान बना दिया अपने तक पहुंचना। अल्लाह had made it easy to reach him by creating all these intermediaries. How? Well, that's what I'm going to tell you. कैसे आसान बना दिया, बस वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि देखें अल्लाह के लामहदूद, you can't count the rights of Allah, so how can you pay back? You can't count the rights of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how can you actually pay back? How can you fulfill? There are hundreds and thousands and very high-ranking rights of the mashayikh and awliya. How will you do that? How will you fulfill the rights of their sohbah? There is a sohbah of Allah, the sohbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, physical and spiritual, sohbah of awliya Allah, meaning company, and then sohbah of parents, sohbah of people, and then actually spouses, brothers, sisters, then actually the animal kingdom. Also after that, obviously yourself also have a right to sohbah. अब अल्लाह पाक ने ये आसान बना दिया बंदों के लिए, has made it easier for people. He has made easier for people
that Allah's rights are infinite, millions, then billions. Rasulullah's rights are millions. Awliya Allah's rights are in thousands. Awliya Allah's rights are in thousands. Parents' rights are in hundreds. People's rights are in tens. You can count. Then spouse's right, मियाँ बीवी के हकूक, वो आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं. मियाँ बीवी के हकूक वो उंगलियों पर भी गिन सकते हैं. और फिर अपने हकूक वो उससे भी कम. तो अब अल्लाह ने ये आसान बना दिया बंदों पर कि ये बंदे जो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, मेरी सोहबत के हकूक अदा करना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के हकूक अदा करना चाहते हैं, औलिया अल्लाह के सोहबत के हकूक, वालिदैन की सोहबत के हकूक, लोगों की सोहबत के हकूक, यानी वो पहुंचना तो उधर है. बट इज़न्ट इज मर्सी कि आपको जब यूर अल्टीमेट destination which is given to you is you should pick up 1,000 kilos. 1,000 kilos of weight. आपको बताया जाता है आपने 1000 किलो उठाना है. आप में ताकत नहीं, लेकिन आपको एक बंदा कहता है go and pick up that 1,000. You don't have the power. क्या करेंगे? बहुत मुश्किल पड़ गई. तो जो बंदा आपको आप पर रहम करे, द पर्सन हु हैव मर्सी ऑन यू, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि पहले ये 5 किलो उठाओ. 5 किलो उठा लिया, 5 किलोज यू हैव, देन 10 किलोज, देन 50, देन 100, देन 500 एंड देन 1000. ये पहुंच जाएगा ना बंदा उधर. इसके लिए आसान बन गया ना. फॉर हिम इट इज ईजियर नाउ, इजंट इट? तो ये जो मखलूक है, डोंट सी इट समथिंग एल्स, डोंट सी इट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन. दिस इज प्लेस देयर सो दैट यू कैन प्रैक्टिस टू अल्लाह सोहबा. अब अल्लाह पाक ने आसान बना दिया. बीवी के हकूक सबसे कम हैं, मिसाल के तौर पर, यानी अल्लाह और रसूल से सब कम हैं बंदे पर, या अपने हकूक कम हैं. तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि पहले अपना हक पूरा करो. फुलफिल योर ओन राइट्स फर्स्ट. या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने राइट्स, अपनी सोहबत का हक पूरा करो. दिस बॉडी विच इज बीन गिवन टू यू, फुलफिल इट्स राइट. इससे इसके कम हकूक हैं, बीवी से इसके कम हकूक हैं. इट इज अ लाइटर वेट. हु कैन नॉट फुलफिल द राइट्स ऑफ द सोहबा ऑफ योर सेल्फ, इवन he should forget about fulfilling the rights of the people who are higher. तो इसलिए ये बताया गया भाई अपने हकूक जो है वो पहले पूरे करता है बंदा. अपने आप को आग से बचाओ, साफ रखो, गुनाहों से बचाओ. दिस इज योर राइट्स. स्मॉल थिंग्स, मीनिंग देयर फ्यू राइट्स, 5 राइट्स लेट्स से. फिर जो है उसके बाद फिर आप बीवी, बच्चों, your family members, you live with them, उनके हकूक, the rights of their सोहबा. तो उनके जो हकूक पूरे करता है, then he is given access to higher personalities. मतलब जो बीवी खामद बीवी के हक पूरे करता है, देर सोहबा, तो उसको फिर एक्सेस दी जाती है, so that he or she will gain access to the higher personalities, to the higher levels, because then it is understandable that he will be able to fulfill the higher rights as well. तो मसलन देखें, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम, the best amongst you is the one who is best in conduct with the close family.
भाई तुमसे बेहतर यो है वो जो अपने अहल के साथ सबसे बेहतर है। तो होना तो देखे ना, इंसान क्या सोचे, वो तो ये कि भाई ये नहीं कि तुमसे बेहतर वो है कि जो अल्लाह के साथ सबसे बेहतर तल्लक रखता है। क्या मकसूद अल्लाह नहीं कि मकसूद बीवी है या खाविंद है? द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव इज वाइफ और हस्बैंड, और द पर्पस ऑब्जेक्टिव इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो वो मसलन ये कि तुम में से बेहतर इंसान वो है कि जो अल्लाह के साथ सबसे जिसका मामला बेहतर है। लेकिन हुज़ूर इस्लाम ने क्या फरमाया, फिर भी आपने गौर किया? हम तो पढ़ के आगे चले जाते हैं, सुन के भी आगे चले जाते हैं, खैर हम तो पहले ही आगे होते हैं सुनना के। अब फरमाया कि द बेस्ट अमंग्स यू इज द वन हु इज बेस्ट विद हिज फैमिली, विद हिज immediate surroundings. Why? Because the person who cannot pick up 5 kilogram, how can anyone expect him to pick up for 1000? जो 5 किलो भी नहीं उठा रहा तो वो कैसे 1000 किलो उठाएगा? फिर आते हैं राइट्स ऑफ योर ब्रदर्स इन इस्लाम। बीवी के हुकूक हैं, फिर ब्रदर्स इन इस्लाम, ये जो भाई आपके साथ बैठे हुए हैं ये ऐसे नहीं, इट इज अल्लाह's विल ही प्लेस्ड विद देम विद यू। ये अल्लाह पाक देखना चाहते हैं कि ये आपस में ये हकूक अदा करेंगे तो इनको फिर ऊंची सोहबत मिलेगी। दे विल बी देन गिवन एक्सेस टू द स्पिरिचुअल सोहबा ऑफ मशाइख, वरना वो बंद रहेगी दरवाज़ा इन पर। तो ये मखलूक को मत समझे कि भाई ये दुत्कारें, इनको दुत्कार दें और इनको ज़ाया करें और इनको कुछ ना समझें। हाँ जी मैं तो अल्लाह से चाहता हूँ, मैं तो अल्लाह से लो लगाई है, मुझे नहीं परवाह इनकी। हाँ जो अल्लाह ने इनको हकूक़ दिए हैं वो उसकी परवाह नहीं करेंगे, वो तो दिए ही अल्लाह ने इसलिए है आपको ट्रेनिंग देने के लिए, देखने के लिए कि दैट हाउ यू आर डूइंग। इफ आई एम जेलस, आई एम एरोगेंट विद माई फेलो ब्रदर्स और सिस्टर, विद फेलो सिस्टर्स, I'm competing with them negatively, I should forget about the spiritual, actual sohbah of mashayikh and awliya salihin, and the sohbah of spiritual sohbah of Anbiya alayhim salam and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the sohbah of Allah subhanahu wa ta'ala, the presence of Allah. I won't be given access. Allah will throw me out, will reject me and my worship and my obedience. तो इस बात को समझें, there is a need to understand this. We are not understanding, हम इसको समझ नहीं रहे, हम मखलूक को कुछ और समझ रहे हैं, वो कुछ और है। Creation is not actually, that is an obstacle for you only, but it is placed there so that you can train, so that you can become able actually for higher sohbah, higher realms and closeness, higher closeness. बीवी इसलिए है, आमद इसलिए है, भाई इसलिए हैं, मुसलमान इसलिए हैं, नेबर्स इसलिए हैं, वरना मकसूद तो अल्लाह है। ये चीज़ें तो मकसूद नहीं। आप देख नहीं रहे कि शैतान ने कितनी इबादत की अल्लाह की। शैतान वर्शिप्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला to the very extremes, but Allah subhanahu wa ta'ala said that look, this is Adam, fulfill the right of Adam, he deserves respect, he deserves honor. उसने कहा नहीं, मैं तो अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं तो अल्लाह से लो लगाऊंगा, मेरी तो अल्लाह से जी लो लगी हुई है। I'll worship you, I'll prostrate for you Allah, but not to Adam. So there Allah subhanahu wa ta'ala tested. The shaitanic self comes out when you are dealing with people, not when you are dealing with Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah is all aware who can actually be arrogant to him as such. तो वो उसकी शैतानियत छुपी हुई थी नेकी के पर्दे के पीछे. The shaitanic side of this
outwardly good, righteous person was hidden behind the veil of his righteous good deeds. And Allah Azza wa Jal exposed his inner self while saying prostrate in front of Adam. आप देख नहीं रहे उसका क्या हशर हुआ? उसने अपने पास वाली सोहबत का हक नहीं ना अदा किया। एक मखलूक की सोहबत का हक अदा नहीं किया, रद्द कर दिया गया, उसको वहां रखा। सो दे द रीजन शैतान was there and Adam al-Islam was placed there so that they can reach higher realm if they do follow Allah subhanahu wa ta'ala. Angels did, फरिश्तों ने अदा किया, उनके दर्जे और बुलंद हो गए। तो इसलिए आपके जो पड़ोस में रह रहे हैं, आपके जो साथ बंदा रह रहा है, आपका जो भाई है, आपके जो इस्लाम में भाई है, द ब्रदर्स इन द तरीक, ऑल दीज पीपल, they don't see them as though outwardly, see them that they are actually a means either for your destruction or a means of your ascension actually to the higher realms. आप चाहें तो इनको इस्तेमाल करके ऊपर चले जाएं और चाहेंगे तो नहीं सही हक अदा करेंगे तो नीचे चले जाएंगे। तो इस मखलूक को इसलिए इसके साथ औलिया अल्लाह क्यों अच्छे अखलाक से, बुरों से भी अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। बिकॉज वेन यू डू गुडनेस विद इवन पीपल हु बिहेव इवल, यू गो क्लोजर टू अल्लाह। आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में कि आज भी नमाज में पढ़ा था, अल्लाह वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, बदी और नेकी एक बराबर नहीं, अच्छाई और बुराई एक बराबर नहीं। इदफा बिल्लती अहसन, बुराई को अच्छाई के साथ दूर करो। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, ये यहाँ इस दर्जे पर वही लोग पहुँचते हैं जो बहुत सब्र वाले होते हैं, बहुत बड़े हौसले वाले होते हैं। मैं छोटे छोटी बातों से एजिटेटेड और तंग हो जाना और compete कर, किससे compete कर रहे हैं? You are here actually to reach Allah subhanahu wa ta'ala and compete in goodness, not in negativity. किससे कर रहे हो? अल्लाह ने पैदा अपने लिए आपको किया है। यहाँ इस रास्ते में हार मान जाना ही जीतना है। In the path of Allah, dealing with people, to be a loser is to be a winner. To be a loser is to be a winner. And to be a winner is to be a loser. शैतान अपने तीन जीत गया ना, मैं नहीं झुका। He thought I won. I don't listen to Allah. I'm not respecting Adam. तो क्या वो जीत गया या हार गया? He thought he won, but he lost. And the angels outwardly was seen that they have lost their status. वो लूज हो गए लेकिन वो गेन कर गए। तो ये समझने की बात है। आपको जो बता रहा हूँ कि जो मशाइख ने जो हिकमत बताई है, so that it becomes in practical life, it becomes easier for you to be in best in conduct, to be good behavior. When you will understand this, the wisdom, this person is here in front of me, is my wife or is my husband for the wife, or brother in the tariq, brother in Islam, is actually that I can utilize him actually even to go to closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Or if I don't, then I'll be actually destroyed like shaitan. तो छोटी सी बात है, देखिए, जो बीवी का सोहबत का हक नहीं अदा कर सकता, वो लोगों के हकूक कैसे अदा करेगा? Hundreds and thousands people outside. इसलिए हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, लोगों के साथ जो अच्छा है वही सबसे अच्छा है। बीवी से शुरू किया, फरमाया पहले जो पास वाले लोग हैं, then general people who you don't know, फिर उनकी बारी आएगी। पहले इनकी, फिर brothers in Islam, brothers in tariq, and brothers in your work colleague and other things. तो जो
अपना हक अदा करेगा, इंशाल्लाह वो बीवी का भी हक अदा करेगा। इसलिए हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, व्हेन यू मैरी गिव प्रेफरेंस टू द कैरेक्टर एंड दीन ऑफ द पर्सन, इज ही fulfilling his own rights or not? If he is not even fulfilling his own rights, how can you expect he will fulfill your rights? आप देखें ना, ये विजडम मशाइख ने समझाया कि हुजूर अलैहि सल्लम की इस हदीस की हिकमत ये है कि फरमाया कि जो शादी करनी हो तो उसके दीन को, उसके अखलाक को देखो। मतलब ये जो अपना हक अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो अपना भी हक नहीं अदा कर रहा, वो आपका हक अदा करेगा, आपकी बेटी का हक अदा करेगा, आपकी बहन का हक अदा करेगा, हक जो अपना नहीं हक अदा कर रहा। हम ये समझते नहीं, हम कहते हैं पैसा देखो, पैसा देखो, और जब पैसा देती है तो फिर जो है वही फिर मामला होता है। जो छोटी बात बता रहा हूँ आपको, है बहुत बड़ी, कि दो बंदा चाहता है अल्लाह तक पहुँचना, अल्लाह के और आपके दरमियान ये सारी मखलूक है, हर एक के छोटे छोटे हकूक़ जो हैं वो अदा करते जाओ, आपको एक्सेस मिलती जाएगी। औलिया अल्लाह कीड़ियों के भी हकूक़ अदा करते हैं। इंसान तो एक तरफ रह गए, लेट असाइड द ह्यूमन बीइंग्स, दे ओनली ऑल्सो फुलफिल द राइट्स ऑफ एंट्स एंड एनिमल्स। औलिया अल्लाह के अखलाक जानवरों के साथ हम ऐसे होते हैं कि हमारे इंसानों के साथ ऐसे नहीं। We don't have that behavior with human beings which only Allah have with donkeys and mice and actually cats and ants. ओली अल्लाह के अखलाक जानवरों के साथ ऐसे हैं कि जैसे हमारे इंसानों के साथ नहीं। हमने तो दरवाज़ा बंद कर दिया अपने ऊपर। तो छोटी बात आपको बता रहा हूँ आसान तरीके से, और हकीकत में बहुत बड़ी, कि अल्लाह तक पहुँचने अल्लाह के रसूल पहले अपना हक अदा करो, जानवरों के हकूक़ अदा करो, बीवी का हकूक़ अदा करो, आपको अगले दर्जे लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा। लोगों के हकूक़ अदा करोगे, इफ़ यू फुलफिल द राइट्स ऑफ पीपल यू विल गिवन एक्सेस टू द गुड पीपल। इफ़ यू फुलफिल देयर राइट्स यू विल बी देन बी गिवन द ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी टू बी इन प्रेजेंस ऑफ अ वली, अ सालेह। लोग कहते हैं ना भी वली नहीं मिल रहे, वो वली इसलिए नहीं मिल रहा कि ये अब तक तो अपने और बीवी के और बंधु के हकूक़ ही नहीं अदा कर रहे थे। इसको अल्लाह पाक वली की सोहबत में क्यों पहुँचाए? वाई दिस पर्सन शुड रीच एक्चुअली कंपनी ऑफ वली, स्पिरिचुअल फिजिकल कंपनी ऑफ वली। वो तब मिलेगा कि जब ये अच्छे अखलाक से, ये लोअर लेवल पीपल ही विल फुलफिल देयर राइट्स। और जिसको वली की सोहबत मिल गई, whoever have been in the company of a wali, a salih, who has been given, fulfill the rights of himself, firstly animals, himself, wives, brothers, people in general, he is given access to the sohbat of wali. A wali is the practicing ground for Allah's messenger sohbah. अब जिसने वली के, शेख के, मुर्शिद के, उस्ताज के हकूक़ अदा कर दिए, उसकी सोहबत का हक अदा कर दिया, he will be given then blessed सोहबा of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and higher मशाइख। फिर उसको ऊंचे मशाइख और उनकी सोहबत का शर्फ मिलेगा। तरतीब समझें, there is an order, there is an order। वरना बीवी का अल्लाह के कुर्ब के साथ क्या तल्लक? फॉर एग्जाम्पल, what of the wife? She is a woman, she is a creation of Allah. What relationship she has with Allah subhanahu wa ta'ala? Closeness. She might not be a pious woman at all, but if you are not fulfilling her rights, you cannot reach Allah, irrelevant of he is a pious or not. You have a mother, even she is a kafir, if you violate her rights, you are not reaching Allah subhanahu wa ta'ala. So this is irrelevant, this person is good, he is good behavior, he is pious or righteous. Whatever rights Allah has actually placed, they are necessary to fulfill. They are not there to be fulfilled because only they are righteous. They are there because they have that particular relationship. Wife, mother, husband, brother, sister, that's the rights there. तो तरतीब है जानवरों के, your own rights, rights of parents, rights of wives, consider them, fulfill them, you will be given
higher presence, higher sohbah of a wali. If you fulfill the rights of the sohbat of wali, that's why the Mashayikh and Prophet Islam, the Sayyidina Abdul Qadir Jilani Rahmatullah mentioned, and other awliya, they focus and they say again and again, emphasize that fulfill the rights of the sohbah of wali and shaykh and ustaz. Why? Because a person who cannot do that, which is a lower kind of sohbah, which is a lower kind of sohbah and lower side of company, how will he then actually fulfill the right of the sohbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And if he is given access to there before, it will be a spiritual death for that person. He will die a spiritual death. He will lose his iman. Because if he does disrespect in the Prophet ﷺ company when he gets there, then it's danger of losing iman. So he's doing mistakes while he's in sohbah wali. He will be lenient with him. He doesn't become a kafir if he doesn't believe in the wali as such. Or maybe he become a little bit sinful, but not as such. So it's a lower level sohbah of a wali. His inkar is not kufr. In Prophet ﷺ sohbah, person speaks higher with a higher pitched voice, his all amal are actually confiscated. In the sohbah wali, one must respect, but it's not the same ranking. तो वली तो इसलिए वो उसको उस पर फोकस किया जाता है कि इस पर ये ट्रेनिंग है तुम्हारे लिए, इस पर तवज्जो करो, सारी तवज्जो इस पर करो. अगर इसके सारी तवज्जो करके भी इसका हक अदा कर लिया तो अब तुम्हें अगला दरवाज़ा खुलेगा. नेक्स्ट डोर विल ओपन फॉर द प्रेजेंस ऑफ द मशाइख एंड अम्बिया एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वहाँ जाके उनकी सुन्नत का, उनके दीन का, उनकी शरीयत का, when you fulfill the rights of the sharia, rights of the sunnah, rights of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you try to do your best in your best way, then you will be given the blessed opportunity to be in the presence and sohbah of Allah subhanahu wa ta'ala. फिर मिलेगा जो बात. अब हम ये बात समझते नहीं, हमें ये बात हिकमत का सोचना नहीं हमने कि भाई ये इसलिए सारी मखलूक का जंजाल पड़ा हुआ है कि ये हमारे लिए आसान बनाया गया मामला अल्लाह तक पहुंचना. इट इज़ लाइक अ लैडर, इट इज़ लाइक स्टेप्स एक्चुअली विच हैज़ मेड ईजियर फॉर यू टू रीच अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दैट इज़ वाई द क्रिएशन एग्जिस्ट, दैट इज़ वाई द एंजल्स एग्जिस्ट. कि फरिश्तों के हक पूरे करो. बस फरमाया फरिश्तों से हया करो, नंगे मत रहो. फरमाया बाज़ मरतबा कि फरिश्ते होते हैं, तो मतलब क्या? फरिश्ते तो महलूक है, वो ना मर्द है ना औरत. दे आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स नॉट दे हैव एनी सेक्सुअल टेंडेंसी. वो इसलिए कि जो फरिश्तों का हक अदा करेगा वही फिर अल्लाह से भी हया करेगा. Whoever is going to be modest by haya in the presence of angels, knowing that angels are with me, he will be having haya then actually from Allah Azza wa Jalla. And whoever does not fulfill the rights of angels, how he will not be bothered about Allah Azza wa Jalla. फरिश्तों से हया नहीं कर रहा, अल्लाह से हया भी नहीं करेगा वो. तो ये देखो ना, हमारे मशाइख ने तो कूजे में दरिया बंद किया. They've actually put an ocean into a pot, into a small bottle, by mentioning this as a precondition of the तरीक. उन्होंने शर्त बता दी कि ये अल्लाह के रस्ते की तरीक पर चलने की शर्त है कि हकूकुल्लाह, हकूकुर रसूल, हकूकुल इबाद को पूरा कर लो, तलाफी कर लो और फिर पूरा करना शुरू कर दो. एंड देन दे actually say that practice it with your tongue, that you be good to people, don't do ghibat, because this is all behavior with people. अब देखें कितनी विजडम, उन्होंने तो आसान तरीके से बता दिया. बस हम blindly follow करें, we'll reach Allah. And if we ponder over, we'll not be able to even comprehend one piece of wisdom behind their command. एक हिकमत भी जो भी मैंने बताई है, सारी ज़िंदगी लोग पैदा होकर बंदा मर जाता है, उसको ये बात समझ नहीं आती. इसी तरह उनके हर अल्लाह के हर हुक्म में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म में ऐसी हज़ारों लाखों हिकमतें हैं जो औलिया अल्लाह ही समझते हैं और उलमाए रब्बानियीन ही समझते हैं. हम तो जो उनके सुन लिया थोड़ा बहुत वो समझ आ गया, बाकी नहीं. तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम चलते जाएं उनके रास्ते पर पहुँच जाएंगे.
छोटी बात आपको बता दी कि ये मखलूक वो अल्लाह का कुर्ब है, ये मखलूक आपके दरमियान है, ये अल्लाह ने रख दिया है। अपना हक 1 किलो है वो अदा कर लें, 1 किलो प्रैक्टिस कर लें। देन बीवी का हक 2 किलो है, देन यू प्रैक्टिस 2 किलोज। देन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 3-4 किलोज, पेरेंट्स 5 किलोज, ब्रदर्स इन तरीक, ब्रदर इन इस्लाम 10 किलोज, उनका हक है, उनके अदा करोगे। देन यू गो टू हायर जनरल पीपल 20-50, फिर देन एक्चुअली यू गो टू वली राइटियस पीपल 100, शेख एंड इन हिज सोहबा मे बी 200 kilos, then to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Sohba 500 kilos, then to Allah Subhanahu Wa Ta'ala which has infinite and above 1000 kilos। भी एक तरतीब बनाई गई है आपको कुर्ब देने के लिए, आपको अल्लाह के करीब करने के लिए। इसलिए मखलूक की कदर करें। You can actually utilize the creation, your behavior with the creation in order to actually become closer to Allah. So when they behave badly, it's an opportunity you can actually use to actually come closer to Allah subhanahu wa ta'ala. What they get or do not get is irrelevant to you. You will get according to what reaction actually you have. That is why, as I was saying, that the Salihin and righteous people, they are compassionate upon animals even, because they know that person who cannot fulfill, जो एक कीड़ी की परवाह नहीं करता, कीड़ी चल रही है। हज़रत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी जिन्होंने रिसाला कुशैरिया लिखा, उन्होंने लिखा कि सिद्दीक ऊंचे दर्जे के वली होते हैं। हाईएस्ट रैंकिंग वली इज़ सिद्दीक। उनकी डेफिनेशन उन्होंने लिखी है कि वो चींटी को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। उनका ये नहीं डेफिनेशन की कि वो इतना जिक्र करते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं। The definition of Siddiq they've done naturally, yes, that is true, that is obviously Allah's obedience and that have to be there, but he's actually defined it by one of the elements that this person, this category of awliya Allah who are known as Siddiqeen, they don't even harm an ant in the creation of Allah. वो चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुँचाते। ये इसलिए देखे ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का और चींटी का मामला आया या नहीं। आपके नज़दीक चींटी छोटी चीज़ है, अल्लाह ने तो एक सूरत का नाम चींटी पे रख दिया। अल्लाह की तो मखलूक है। अल्लाह पाक तो एक कुत्ते की वजह से, एक बिल्ली की वजह से एक औरत को जहन्नम में फेंक दिया। एक कुत्ते की वजह से एक औरत, गुनाहगार औरत को जन्नत में भेज दिया। ये है वो बात तो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक देख रहे, ये मेरी एक बिल्ली मखलूक है। दिस वुमन does good deeds, but she is not fulfilling the right of one of my creation, a cat, namely cat. How will she fulfill the rights of Allah and His Messenger of the time and anyway? Forget, thrown in him hellfire. और जिसने वो कुत्ते को पानी पिलाया, उसने शुरू तो कर लिया ना कहीं से। She started with sincerity from somewhere. उसने नीचे से शुरू किया। She began from the bottom. वैसे वो गुनाहगार है, लेकिन उस अल्लाह ने उसको फिर तौबा नसीब फरमा दी बात, क्योंकि उसने कुत्ते के साथ नेकी की। तो इसलिए जो चींटी चल रही है ज़मीन पर, यू आर नॉट बादर्ड। आप इसको जला रहे हैं या उसके ऊपर पाँव रख रहे हैं, यू आर नॉट बादर्ड, यू आर नॉट बादर्ड। तो जो चींटी का हक नहीं अदा कर सकता, वो अल्लाह के वली का कैसे अदा करेगा? वो अल्लाह के रसूल का कैसे अदा करेगा? वो अल्लाह का हक कैसे अदा करेगा? जो चींटी का नहीं हक अदा कर सकता, वो कैन नॉट फुलफिल द राइट। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं एक दूसरे के, इंसानों के साथ। ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक डॉग्स, डू नॉट स्पीक टू अदर्स। स्पेशली टू हियर दैट फ्रॉम रिलीजियस माइंडेड और रिलीजियस विद आउटफिट पीपल इज मोर स्ट्रेंज। वो तो शैतान है जो लिबास खिज़र में फिरते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया, मैं बाज़ लोग ऐसे हैं अंदर से वो भेड़िए शैतान है और खिज़र का लिबास, यानी दे आर इन दी आउटफिट ऑफ वलायत आउटवर्डली, बट लुक एट देयर टंग्स। उनकी ज़ुबानें देखो, उनका बिहेवियर देखो, उनकी टोन देखो। लुक एट देयर टोन, हाउ दे स्पीक विद पीपल। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना कुल्ली इबादी यक़ूलु लती ही अहसन।
फरमाया कि मेरे बंदू से कह दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने फरमाया वह कुल्ल इबादी, मेरे बंदू से कह दें कि वो बात करें अच्छे तरीके के साथ, अहसन तरीके के साथ, इन द बेस्ट वे। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, स्पीक विद पीपल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हालांकि वो काफिर भी हैं, नास में लोग काफिर भी हैं, अल्लाह पाक माने काफिर भी हैं, तो अच्छे तरीके से बात करो। और हम मुसलमानों के साथ, बीवियों के साथ, बीवी खामद के साथ और अपने मुसलमान भाइयों के साथ, तो वो लोग भूल जाएं। अगर अब मैं समझता हूँ वो अर्श के नीचे फिर रहे हैं, आखिर में वो जहन्नम में ही देखेंगे अपने आप को। वो धोखा दे रहे शैतान उनको। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया उनका कोई ख्वाब, कोई कश्फ, कोई बुजुर्गी वो उनको बचा नहीं सकेगी। जो वो समझ रहे हैं वो कुछ भी नहीं होगा। वही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हक अदा करोगे तो वो हक मिलेगा, अल्लाह मिलेगा आपको। तो चींटियों से शुरू करें, जानवरों से शुरू करके, और फिर जो है इंसानों तक काफरों के भी हकूक़ हैं, पड़ोसियों के भी हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, पूरे करते जाएं तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं, अल्लाह के करीब हो रहे हैं। जस्ट डिसरिगार्ड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। तो स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग इन दीन, जो दीन में मेहनत कर रहे हैं, जमातों में, तबलीग में, दावत में, उनको और ज़्यादा एहतियात चाहिए। बिकॉज दे हैव मोर राइट्स ऑफ ईच अदर, राइट्स ऑफ दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नॉट गोइंग टू लुक एट द वर्क ऑफ दीन ऑफ द पर्सन। याद रखें, अल्लाह पाक किसी की तबलीग को नहीं देखेगा, किसी की दावत को नहीं देखेगा, किसी के सखावत को नहीं देखेगा। अगर वो उसका अखलाक बद है साथ वाले मुसलमान के साथ, तो वो उसका जो है वो मामला बड़ा ख़राब है। शैतान की इबादत को नहीं अल्लाह ने देखा, शैतान के अखलाक को नहीं देखा, शैतान के तकवे को नहीं देखा जो पहले वो करता रहा, उसके जिक्र को नहीं देखा, उसकी तस्बीह को नहीं देखा, नहीं हक अदा किया आदम अलैहिस्सलाम का, तो फरमाया कि फ़ख़्रुज फ़इन्ना अलैका लानती, निकल जाओ मेरी लानत है तुझ पर, इला यौमिद्दीन, क़यामत तक लानत पड़ती रही। इसलिए इसको समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई वेयर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, आप देखें तो अपने साथ वाले जो आपके साथ बंदा बैठे, इसका भी पूरा कर रहे हैं या नहीं। आपने देखा है कि औलिया अल्लाह की साल हमने तो सोहबत पाई नेक बंदों की, जिस तरह उनका सफ़र होता, जिस तरह वो अकेले बातें करते, गाड़ी में बातें करते, सवारी पे बातें करते, हर उनका एक ही रंग है। हमारा हाल ये है कि बाहर हैं तो जैसे अभी कह रहे नरमी है, घर गए तो वो चीख रहे हैं, फ्रेंडों के साथ है तो वो बिल्कुल टोन बदल गई। तो ये मुनाफिकत गिरगट के रंग बदल रहा है। गिरगट जिस तरह है ना, वो रंग बदलता है, तो ये रंग बदल रहे हैं। बंदे को खौफ करना चाहिए उस वक्त, मैं कैसे रंग बदल रहा हूँ। हाँ, आई हैव लेफ्ट द पीपल हु आर आउटसाइड, लेकिन खुदा तो अंदर भी वही है जो बाहर था। किसके सामने मैं कलर चेंज करूँ। तो हम तो अपने सालिहीन के साथ, नेक बंदू के साथ बैठे, जब वो बाहर होते फिर भी वही बात, तकरीर में कुर्सी पे बैठते फिर भी उसी ऐसी बातें, और कभी इंटरव्यू दे रहे हैं फिर भी ऐसी बातें, टीवी पे हैं फिर भी ऐसे, मतलब उनके तो लिए एक ही बात होनी चाहिए। अब ये कि कैमरा ख़त्म हो गया तो अब जो है वहाँ गप्पे लगाना शुरू कर दो, या अभी घर में आ गए वो अपना गप्पे, मतलब ये नहीं कि अब ज़ाहिर बीवी के साथ जो मामला है वो दूसरों के साथ नहीं, लेकिन बदजुबानी इख्तियार करना, गाली गलोच इख्तियार करना, ये तो ठीक नहीं किसी तरह भी। सख्ती और दुरुस्तगी खामखा, वो तो दुरुस्त नहीं। सख्ती करें शैतान पर, सख्ती करें अपने नफ्स पर, सख्ती करें। देयर आर प्लेसेस, देयर आर पीपल, देयर क्रिएशन लाइक शैतान एंड शैतानिक पीपल, टू एक्चुअली बी हार्ड ऑन देम, उन पर सख्ती करना। तो तरीक़ में तो वैसे ही सिखलाया जाता है, बट आई थॉट आई विल मेंशन सम ऑफ द वन ऑफ द विजडम्स बिहाइंड इट। एक हिकमत आपको बता दें कि अल्लाह ने जो मखलूक पैदा फरमाई उसकी एक हिकमत ये है, और उसमें लाखों करोड़ों हिकमतें होंगी। और शुरू करना कहाँ से करना है आपने, एज आई सेड, विद एनिमल्स, then yourself, फिर your brothers and others, and then inshallah you will get access to the higher ranking.
मैं अभी मिसाल दे रहा था, इट इज़ नॉट अबाउट माई सेल्फ बट गिविंग एन एग्जाम्पल मिसाल दी है। Since I've been going to Kaaba Sharif, how many ever times Allah subhanahu wa ta'ala blessed me actually with the occasion, I do not know myself. I don't count. Since I have been going there, I had the desire, it is sunnah of Rasulullah sallam, to kiss the stone of Hajar al-Aswad. But because actually what the respect and the honor which Rasulullah mentioned about a Muslim, that he is more honorable than actually Kaaba, I had no courage to actually through hustle and bustle and actually push people and reach the Hajar al-Aswad. I would blessed actually perform the blessed sunnah actually with this. आपको पता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी मुसलमान की तरफ पाँव नहीं किए, जैसे मजलिस में now you are sitting as though although that he would not actually spread his feet actually towards a Muslim, ये जैसे अब बैठे हैं अपने में, obviously if there are walls and there are barriers between, फिर तो नहीं apply, but generally straight directly मुसलमान की तरफ पाँव हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं करते, हम तो उनको जूते मार रहे हैं। वजह यह है कि मुसलमान काबा की तरफ पाँव करना बेअदबी है और मुसलमान का एहतराम काबा से भी ज़्यादा है। द ऑनर ऑफ मुस्लिम इज़ मोर हायर देन द काबा। तो काबा की तरफ आप पाँव नहीं करते तो मुसलमान की तरफ कैसे करेंगे? लेकिन ये तो जो सोचे उसको समझ आएगी ना। But if the Prophet ﷺ mentioned the hurmat of Muslim is greater than the Kaaba, मुसलमान की इज्जत काबे से भी ज़्यादा है। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने आखिरी दिन में फरमाया काबा तुम्हारी, तो अल्लाह ने तुम्हें बहुत हुर्मत दी, इज्जत दी, लेकिन मेरी उम्मत का मुसलमान की इज्जत तुझसे ज़्यादा है अल्लाह के यहाँ। तो जो काबा की तरफ नहीं कर रहा वो मुसलमान की तरफ क्यों करेगा? दैट पर्सन वो कैसे वो हक कैसे अदा कर रहे थे? बात कर रहा था हजर अस्वद को नहीं चूमा, आगे जाके लोग चूमते हैं, धक्के भी देते हैं, कुछ धक्कों के बगैर चूमते हैं। साल हो गए 13-14 years ago. Now Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me out of his fazl and mercy and grace. अल्लाह ने इनाम और फजल किया कि वहाँ जिस ख़ानदान के पास वो काबा शरीफ की चाबी है, the family which has the key of the Kaaba from centuries, because Rasulullah sallallahu Hazrat Usman bin Talha, probably his family, was given the key, and Prophet ﷺ said, none will take the key from you but a zalim, but an oppressor. So kings have come and gone, governments have come and gone, no one has taken key from their family because they didn't want to come in the be a target of the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or the of which Prophet ﷺ actually said that that person will be a zalim. So recently one of our brothers and actually elders, they went actually, and that family member of the sheikh actually who had the Kaaba, he gave actually as a gift for me actually a piece of the blessed stone of the Hajar al-Aswad. यानी उन्होंने हजर अस्वद के एक छोटा सा टुकड़ा का हिस्सा हदियातन जो है वो दिया है मुझे भेजने के लिए। तो मुझे पूछा किसी ने, फिर भाई ये किस लिए, मैंने तो अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता। बट वन थिंग आई कैन से इज दैट maybe is because I have never actually gone near the Hajar Aswad due to the fear of Allah and respect of a Muslim, and Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me with a favor in this dunya actually that I can keep the Hajar Aswad, part of it actually, with me, and not kiss it whenever a person goes there, but whenever actually I will. तो ये आपको बता रहा हूँ कि ये मखलूक की ये तो दुनिया में इनामात है, अल्लाह आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला will bless those people who fulfill the right of his creation throughout actually in the next world as well. उस दुनिया में तो फिर अल्लाह जो इनाम देगा वो तो बहुत ज़्यादा हो। And is this unthinkable?
नो, इट इज़ नॉट थिंकेबल। ये तो सोच ही नहीं सकता बंदा कि हजर अस्वद जिसको लोग चूमने के लिए जो है वहाँ हज़ारों पौंड खर्च करके वहाँ तवाफ़ करते भी नहीं चूम सकते, और वो हजर अस्वद जो है वो आपके पास आ जाए, सोच नहीं सकता। लेकिन अल्लाह के यहाँ सब कुछ जो है वो मुमकिन है। तो अल्लाह के लिए जो बंदा कोई चीज़ छोड़ेगा, हज़रत अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह उसको वही चीज़ या उससे बेहतर अनायत फरमाएगा। हदीस हज़रत अलैहि सलाम की, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, whoever will abandon anything for Allah, Allah will either bless him that thing or better than that thing in his life or whenever Allah subhanahu wa ta'ala wills. So whoever is in dealing with Allah, he's never at loss. Whoever has straightened his relationship with Allah is never in loss. So we finish here, but actually this is not finished, meaning your actions should continue, begin. This should be start beginning your behavior and action with the creation. Although we train in the tariq, automatically people to do this. But maybe if this wisdom is behind back of your head, it will become easier for you to some extent. ये आसान हो जाएगा इस पर जो है वो यानी अमल करना। फिर आपको पता चलेगा वो मखलूक है जो भी है, ये आपको अल्लाह का कुर्ब मिल सकता है इसके ज़रिए। और हुज़ूर अलैहि सलाम के पहुँचने का तरीका ये है कि भाई पहले इनके हकूक़ अदा करते 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 वहाँ जा पहुँचोगे, फिर अल्लाह तक जा पहुँचोगे। दैट इज़ वाई money I have borrowed from you, money I have borrowed from you, but Allah subhanahu wa ta'ala said, you worship, whatever you do, you are not getting my closeness until you return the money to the person. पैसे काफर के मुसलमान के लिए है मैंने, लेकिन अल्लाह पाक कह रहे हैं मेरे पास नहीं आ सकते तुम, मेरा कुर्ब नहीं मिलेगा जब तक वो नहीं अदा करोगे। तो इस बात को समझना चाहिए ना। हमारे लोग डायरेक्ट छलांग लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट। पास वाले बंदे का अदब नहीं, कीड़ी का अदब नहीं कर सकता, वो वली का अदब क्या करेगा? बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, वो शेख की सोबत का हक क्या अदा करेगा? और वली की सोबत का हक अदा नहीं कर सकता तो हुजूर अलैहि इस्लाम की सोहबत का हक अदा। तो ये तरतीब है। तो इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि दैट यू ट्रेन योर सेल्फ एंड इंशाल्लाह यू गेट एक्सेस वेरी क्विकली। फिर बहुत जल्दी आपको रास्ते खुलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। अदरवाइज एक्चुअली this idea of directly going, bypassing the creation by violating their rights. I'm not bothered who he is. I eat from my home. I'll worship my Lord. I have my messenger. I'm not bothered about my brother and sister. Well, you will not get to Allah and His messenger as well. So something like this. This has been the way of Awliya and Salihin. कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने देखें जहाँ शुरू किया है कुरान मजीद, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि आप पढ़ते हैं लैसल बिर्र अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। Then Allah Azza wa Jalla mentioned the concept of righteousness, but I'm just going to stop here because already we have gone past the time. कोई सवाल है तो कर ले। Anything especially regarding what I have said, if you have not understood, तो पूछ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि रब्बि इग़फ़िर ली व तुब अलैहि। वालेकुम अस्सलाम। Brother is asking, is it not easier to fulfill the rights of creation if you deal less with them? Yes, obviously, if you have less dealing, you will have less rights to fulfill. Yeah, that's you are right there. But for example, if you are born now from a father and mother, now you have those rights, they have those rights, you deal with them or not deal with them.
But yes, this can be true with those people who don't have direct or permanent rights actually upon yourself. You know, like that's why awliya Allah, they say that if you have qillatul ikhtilat ma'al anam, that if you have less interaction with people, this helps. Unnecessary ikhtilat mean actually to mixing and socializing, less socializing definitely. And this is the teachings of awliya Allah, that one should do this. One should not have too much. They even say that one should not be too much actually closer to one's wife. One should not have too much ikhtilat with one's wife, because then it is going to end up in argument, disagreement, quarrel, fighting, and other things as well. Walaikum assalam wa rahmatullah. Where one can find knowledge of the rights of creation, there have been many, many books written on just the rights of actually creation, rights of people. This all in Quran and Sunnah, but the ulama have selected particular parts, and especially in the books of fiqh, they are mentioned specifically, the rights of people, the muamalat, the dealings with people. तो वहाँ सारे बयान किए गए, ख़ास फ़िक़ा में ये होते हैं मसाइल बयान। और ऐसी छोटी छोटी किताबें भी हैं जहाँ भाई बंदों के हकूक़, जानवरों के हकूक़, इंसानों के हकूक़, जिन्नात के हकूक़, मलाइका के हकूक़, अल्लाह के हकूक़, and the हकूक़ of the environment. Yes, brother. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mother is asking that if a person have been given a blessing, a gathering, access to a sohbat of a sheikh or a wali, and they did not know about these things, nor they fulfill the rights of other people, and out of they just pure mercy and grace, they think they have got this. But what I am saying is that even though if they are not fulfilling the rights of others, they might be in the physical company of the sheikh, but the real presence and sohbah and the spiritual sohbah of sheikh, they still might be deprived. Like the munafiqeen who were in the sohbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam outwardly, but inwardly, in reality, they were not in sohbah. So there are people who interact with the aqtab, the abdal, the ghaus, and of the times, and they deal with them, but actually because they don't know, and they don't actually benefit from their sohbah as such. So one is being in physical company, and one is actually being in the reality of the sohbah. So that will only, so a person will benefit from the wali only when they do whatever is been mentioned. Otherwise they might be there, they can be learning, and they should practice, and if they don't actually, then it's danger, like as I mentioned, like shaitan.
He was given access. You are saying giving being access to a wali. He was being given access to angels' sohbah. He was being given access to the sohbah of the presence of there. But that was just outwardly, really. Inwardly, he still was a deprived person. तो वालदैन की सोहबत मिल जाना और बात है, वो हर एक को मिलती है, लेकिन क्या वालदैन को उसने राज़ी कर लिया, क्या वो खुश हैं या नहीं उससे? दैट इज़ द पॉइंट। सिर्फ जो है कि जी मैं वालदैन के साथ बैठा हूँ, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, लगता है मैंने सब दूसरों के हकूक़ अदा की, इसलिए मुझे इतनी बड़ी सोहबत वालदैन की मिली है, तो वो दिल उनके बद्दुआएँ दे रहे हूँ आपको, तो वो ज़ाहरी सोहबत फ़ायदा नहीं देगी जब तक कि बातनी सोहबत भी नहीं। व्हाट डज स्पिरिचुअल सोहबा मीन? व्हेन द अदर पार्टी इज़ ऑल्सो प्लीज्ड विद यू। तो ठीक है, आप किसी वली की सोहबत में तो होंगे, लेकिन क्या वो वली भी आपसे खुश है या नहीं? आप किसी नबी की सोहबत मिल गई आपको, क्या वो नबी भी खुश हैं आपसे या नहीं? So Rasulullah sohbah, different type of people come, but was he pleased with them or not? He was not pleased with Munafiqeen and their states. He was pleased with Abu Bakr and Umar and Usman and Sayyidina Ali and Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala. तो spiritual सोहबत से क्या मुराद? What does mean कि भाई रूहानी सोहबत मिलनी चाहिए ज़ाहिरी के साथ? वो ये कि वो दूसरा भी आपसे राज़ी हो। इसलिए मशाइख कहते हैं कि अपने बारे में खुद फैसला ना करो, मैं यहाँ पहुँच गया और मैं वहाँ पहुँच गया, आई हैव रीच्ड देयर, आई हैव रीच्ड देयर, आई एम फीलिंग गुड टुडे, आई एम बैड। डोंट मेक डिसीजंस अबाउट योरसेल्फ, let actually the teacher and the sheikh make the decision, and let Rasulullah sallallahu alaihi wasallam make the decision, and let Allah subhanahu wa ta'ala make the decision on the day of judgment. Don't be your own judge. और ये सब शुरू होता है मसला, वेयर डज इट बिगिन विद द टंग, ज़ुबान से। इसको लगाम आ जाए तो पर्सनस जर्नी डज बिगिन। इसको जब लगाम आ जाती है, जब ये रुक जाती है, तो बंदे का सफ़र शुरू हो जाता है। जब इसका रुकना बंदे की सफ़र, रूहानी सफ़र वो शुरू होने का जो है वो इशारा होता है। Because this means that you are going to attain something. Like Hazrat Zakaria Islam, he was given the best news of a son being born, Hazrat Yahya, and he asked, Rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukallim an-nasa salah. Oh Allah, give me some sign